کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ شوپیاں میں ایک نوجوان نے اپنے دستیاب وسائل کے ساتھ ایک کرکٹ اکیڈمی کھولی ہے۔ مقامی نوجوانوں کو اس سے کافی فائدہ مل رہا ہے۔ پیش ہے ارشاد ملک کی یہ رپورٹ۔ شوپیاں ٹاؤن کے قریب چوگام گاؤں میں ذیشان ریاض نے کرکٹ اکیڈمی کھولی ہے۔ ضلع کے نوجوانوں میں کرکٹ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ذیشان نے یہ پہل کی ہے۔ اس اکیڈمی سے کافی نوجوان مستفید ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کے مطابق ضلع میں کھیل کود کے لیے مناسب انفراسٹرکچر کی کمی ہے اور انہیں سرما میں پریکٹس کے لیے جموں جانا پڑتا ہے، لیکن علاقے میں اکیڈمی کھل جانے سے انہیں سہولت ہو گئی ہے۔ قومی سطح پر کرکٹ کھیل چکے شبیر لیفٹی اور عادل کاچرو جیسے کھلاڑی نوجوانوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ذیشان کے مطابق انہیں حکومت کی جانب سے کوئی تعاون نہیں ملا ہے۔ ہمیں فائنینشیل پرابلم بہت ہوتی تھی، ہمیں جموں جانا پڑتا تھا۔ ہم بہت خوش ہیں کہ یہاں پر یہ انسٹیٹیوٹ کھلایا گیا ہے کہ ہم یہاں پر پریکٹس ونٹر میں بھی کرتے ہیں، اس میں سمر میں بھی کرتے ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں۔ میرے والد صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس میں، مطلب جو اکیڈمی سٹارٹ کرنے میں، تو جو بھی خرچہ ابھی تک آیا ہے وہ مطلب میرے والد صاحب نے دیا ہے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک جو ہے کوئی بھی سپورٹ ہمیں نہیں ملا ہے۔ زمین مطلب اتنی پلین تو نہیں تھی، اوبڑ کھابڑ زمین تھی، اس کو ہم نے پلین کیا۔ تو ابھی تک تو یہ چالو تو ہو چکی ہے، لیکن پلان ہے انشاءاللہ اس کو انڈور بنانے کا، تاکہ ونٹرز میں یہ قائم رہے، یہاں کے بچوں کو دور جانا نہیں پڑے۔ یہیں یہ اپنا ٹیلنٹ جو ہڈن ٹیلنٹ ہے، بہت ٹیلنٹ ہے یہاں کے کشمیر کے بچوں میں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹیلنٹ باہر آئے، تو یہ بچے نہ صرف اپنا نام، اپنے والدین کا نام روشن کریں، بلکہ اپنے علاقے کا نام روشن کریں، اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے ہمارے لوکل لڑکے کا یہاں پہ۔ ابھی آپ کے میڈیم کے تھرو ہم ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کہ مشن یوتھ، ابھی آپ اگر دیکھیں گے کہ کافی نیوز میں ہے کہ مشن یوتھ، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ساؤتھ کشمیر میں کریز کرکٹ کا بہت زیادہ ہے، تو ایک کرکٹ اکیڈمی اگر ساؤتھ کشمیر میں آتی ہے جہاں پہ ونٹر میں بھی انڈور بالنگ مشین، باقی نیٹس میں لڑکے کھیلتے رہیں تاکہ وہ ڈرگ سے دور رہیں۔ ذیشان نے اپنے دستیاب وسائل کے ساتھ کرکٹ اکیڈمی کھول کر نوجوانوں کے لیے اچھا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ تاہم حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کے لیے بہتر وسائل اور مواقع فراہم کرے تاکہ مقامی نوجوان اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکے۔ نیوز 18 اردو کے لیے شوپیاں سے ارشاد ملک کی رپورٹ۔ جموں یونیورسٹی میں صحافیوں، کالج پروفیسروں اور طالب علموں کا 5 روزہ ورکشاپ شروع ہوا۔ یونیورسٹی کے شعبہ اردو نے NCPL کے اشتراک سے یہ ورکشاپ منعقد کیا ہے۔ اس میں کافی تعداد میں صحافیوں، طالب علموں اور پروفیسروں نے شرکت کی۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے عہدیداران اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر منوج دھر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ معروف صحافی سہیل کاظمی مہمان ذی وقار رہے۔ نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کاظمی نے ایسے ورکشاپ منعقد کیے جانے کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے صحافیوں کی صلاحیتوں کو فروغ ملے گا، وہ اور بہتر ڈھنگ سے سماج کی خدمت کر سکیں گے۔ ڈائریکٹر NCPL پروفیسر عقیل احمد نے کہا کہ وقت کی یہی ضرورت ہے کہ صحافی شفاف طریقے سے حالات عوام کے سامنے رکھیں۔ اسی سلسلے میں NCPL صحافیوں کے لیے ایسے ورکشاپ منعقد کرتی آئی ہے۔ جو ورکشاپ ہے اس میں جرنلزم کے بارے میں جو ہمارے ورکنگ جرنلسٹ ہیں جموں میں ان کو انوائٹ کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ جو کافی سارے ایکسپرٹس ایسے آئیں گے جو کہ جرنلزم کے جو آج کے ڈفرینٹ ڈائمنشنز ہیں، میڈیا کے، آج کل تو اخبارات ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس کے بارے میں جو ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے ان کے بارے میں یہاں پہ لیکچرز ہوں گے اور ان کو ایک پروفیشنلزم کی طرف لیا جائے گا۔ جموں یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے اشتراک سے 5 دن کا ایک ورکشاپ، جرنلسٹ ورکشاپ NCPL کروا رہا ہے، جس کی آج شروعات ہوئی ہے۔ اور اس طرح کے جو پروگرام ہے، ورکنگ جرنلسٹ کے پروگرام، ہم پورے ہندوستان میں ہر سال ایک یا کبھی کبھی 2 بھی کراتے رہتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اردو جرنلزم کو بڑھاوا دینا۔ اس اے ویلکم سٹیپ، اور زیادہ سے زیادہ انٹریکشن جب بھی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ سیمینار جو ہوتے ہیں، یہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ سوسائٹی کو آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں، اسٹیٹ کو آگے بڑھانے میں مدد کرتے ہیں، اور لینگویجز کا فروغ جو ہے وہ بڑھتا ہے، پھلتا ہے اور پھولتا ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی نئی دہلی کی جانب سے KL سہگل ہال جموں میں ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
इसमें डोगरी के कई नामवर कलमकारों ने हिस्सा लिया। ध्यान सिंह और जगदीप दुबे जैसे नामवर कलमकारों के साथ तबादला ख्याल का एक सेशन मुनक्किद हुआ। डोगरी के लिए एकेडमी के कन्वीनर दर्शन दर्शे ने कहा कि डोगरी ज़बान को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देने के लिए साहित्य अकेडमी कई इक़दाम कर रही है। ये तकरीब इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। वरिष्ठ साहित्यकारों से इस तरह की बातचीत इसलिए भी करवाती है कि एक तो साहित्यकार डोगरी साहित्य में जो लिखने वाले हैं उनका सम्मान हो सके, और दूसरा लोगों तक उनकी वो बातचीत पहुंच सके कि वो किस ध्येय से, किस लक्ष्य से डोगरी भाषा में काम कर रहे हैं। कुल मिला के साहित्य अकेडमी इन सब कार्यक्रमों का जो लक्ष्य है वो यही सिद्ध करना चाहती है कि क्षेत्रीय भाषा डोगरी में किस तरीके से साहित्य की और भाषा का प्रचार और प्रसारण हो सके। टाउन हॉल डोडा में कश्मीरी, सराजी, गुजरी, भद्रवाही और दीगर ज़बानों के फ़रोग़ के लिए कल्चरल एकेडमी की जानिब से मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे में चिनाब खित्ता समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के मारूफ शोरा ने शिरकत की और कलाम सुनाया। इस मुशायरे में मकामी अफराद, समाजी कारकुनों के अलावा सरकारी अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जहाँ तक एकेडमी का ताल्लुक़ है या दूसरे कोई ऐसे इदारों का ताल्लुक़ है जिनको अदब से वाबस्तगी है, जिनको अदब का काम करना चाहिए था, वो तो बिल्कुल दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता। साला साल जो है यहाँ पर हमें जो है अवॉइड किया जाता है, हमारे इलाकों में नहीं आया जाता, जबकि यहाँ टैलेंट है। यहाँ बहुत अच्छे शोरा, अदीब, अफसाना निगार, कहानी निगार, हर किस्म का टैलेंट यहाँ पर है। पूरे अर्स्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा से जो हैं, जो चिनाब वैली है, उससे जो है मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के शुअरा उन्होंने यहाँ पे अपना कलाम पेश किया और बहुत सारे जो लोग थे, जो ऑडियंस थे, उनको महसूस। कदलाबल अवंतीपुरा में आज 13 साल के बाद एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पर ज़मीन मालिक का कब्जा हटा लिया गया। जोनल एजुकेशन अफसर अवंतीपुरा के मुताबिक स्कूल इमारत में एक कुंबा 13 साल से रिहायश पजीर था। नई इनरोलमेंट पॉलिसी के तहत अब इस स्कूल में आज बच्चों का दाखिला शुरू किया गया है। हमने यहाँ पे एक्शन की, यहाँ पे आए, सबसे पहले हमने कब्जा छुड़ाया इस बिल्डिंग का और अपने कब्जे में ले ली ये बिल्डिंग, और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑन स्पॉट 10 एडमिशन किए हैं, जिससे यहाँ पे लोग बहुत खुश हुए। और इन्होंने मुझे पूरा वादा किया है कि कल तक यहाँ पे 30 तक ये एनरोलमेंट बढ़ जाएगा। यहाँ पे स्कूल वापस फंक्शनल किया, 10 एनरोलमेंट ऑन स्पॉट किए, और हमें उम्मीद है लोगों ने यहाँ पे पूरा हमें कोऑपरेशन दी और कल तक यहाँ पे एडमिशन 30 तक पहुँच जाए। गिंदन स्टेडियम श्रीनगर में एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 शुरू हो गई है। इसमें सैकड़ों बच्चे मुख्तलिफ ज़ुमरों में हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर एथलेटिक एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर एमेचर एथलेटिक्स एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने इसका इनेकाद किया। शुरका ने चैंपियनशिप के इनेकाद पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बच्चों में बढ़ रहे तनाव के चलते ऐसी सरगर्मियाँ काफ़ी अहम हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की, तो जिसको अगर हम देखेंगे 2-3 साल से हुआ नहीं है, कुछ कोविड की वजह से प्लस और भी हालातों की वजह से। अब इस बार हमारे जितने भी सीनियर्स एथलीट्स हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जो है हम करते रहेंगे। मैं यहाँ पे एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने आई हूँ बिकॉज आई लव एथलेटिक्स एंड हम 2 साल से घर पे बैठे हैं, सो हमारा माइंड ताकि हम रिफ्रेश हो जाए, इसलिए मैं यहाँ रेस करने आई हूँ। गुरेज में फौज की जानिब से पोर्टर तबके का इजहार तशक्कुर करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। फौज के साथ शाना बशाना काम करने वाले पोर्टरों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कल्चरल प्रोग्राम के अलावा पोर्टरों को खाना भी पेश किया गया। पोर्टर्स का कहना था कि बेरोजगारी के इस दौर में फौज ही सैकड़ों लोगों को पोर्टर भर्ती के लिए उन्हें रोजगार फराहम करती है। अच्छा लगा क्योंकि हम यहाँ पे हर साल ये पोर्टर कंपनी का काम करते हैं और हम आगे भी करते जाएंगे सर। हम फौज का हेल्प करते हैं, यहाँ से जो हमारा सामान जो है हम फौज का ऊपर पहाड़ों पे पहुँचाते हैं और हमें ये हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। इनके साथ बहुत मज़ा आया। 1 साल पूरा हमने बहुत ही अच्छे मज़े से निकाल दिए और कि इसके बगैर हमारे को और कोई चारा भी नहीं है। कहीं दूसरी जगह काम भी हमारे को नहीं होता है। गुरेज ऐसी जगह पे है कि जहाँ पर 6 महीने के लिए हमारा जो रोड होता है वो ऑफ हो जाता है, तो हमारा ना कोई गाड़ी का ये होता है ना कुछ होता है। कोई
लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर फौज ने अस्पताल इंतजामिया के ताउन से गुरेज के सुधे कलशे गांव में मेडिकल कैंप मुनक्किद किया। इस मौके पर पाया गया कि ज्यादा वजन उठाने की वजह से लोग कमर दर्द और ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं। 150 लोगों का मुफ्त इलाज किया गया और उन्हें दवाएं भी फराहम की गईं। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो फौज के सहारे ही इस दुश्वार गुजार इलाके में जी पा रहे हैं। कमांडर उनका और डॉक्टर साहब गुरेज से भेजकर यहाँ हमारे को कैंप खुलाया और बहुत दवाई दिया। यहाँ फौज के बगैर हमारा कोई सहारा नहीं चल रहा है। यहाँ फौज बहुत मदद कर रही है हम लोगों को। हम भी फौज के साथ है कि हमारे साथ फौज है तो तब हमारा यहाँ सारा चल रहा है। पेशेंट बहुत सारे हुए थे तो हमने इनका चेकअप भी किया है। आर्मी भी थी, हम आर्मी के बहुत थैंकफुल हैं कि इस फार्चून एरिया में इन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया और हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए, लोगों के ये मेडिकल चेकअप करने के लिए। और हमने थोड़ा सा यहाँ पे अवेयरनेस दी रिगार्डिंग गोल्डन कार्ड से। किश्तवाड़ में फौज की 26 आरआर नौजवानों के लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का एहतमाम कर रही है। इस इक़दाम का मकसद नौजवानों को फौज व दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस में भर्ती के लिए तैयार करना है। किश्तवाड़ से 60 नौजवानों ने इस तरबियत में हिस्सा लेंगे। भर्ती अमल के सभी उमूर की इन नौजवानों को तरबियत मिलेगी। मकामी नौजवानों और तलबा ने फौज के इक़दामात की सताइश की। सांबा में फौज की सनराइज ब्रिगेड और जिला इंतजामिया ने नाउ यूर आर्मी प्रोग्राम का एहतमाम किया। बड़ी ब्रह्मणा में इसका इनकाद हुआ। इस दौरान हथियारों की नुमाइश की गई। जिले के सरहदी इलाकों से आए तलबा को हथियारों के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें फौज में भर्ती होने की तरगीब दी गई। फौज के जदीद हथियारों के बारे में भी जानकारी दी गई। तलबा ने इस पर खुशी का इजहार किया। गांदरबल में फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन पर एक रोज़ा बेदारी कम ट्रेनिंग कैंप का इनकाद किया गया। कैंप का इनकाद फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत किया गया। बेकरी, रेस्टोरेंट के मालिकीन और पीने का पानी फराहम कराने अफराद ने शिरकत की। इसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी गांदरबल ने की। डीसी अनंतनाग की हिदायत पर तहसील इंतजामिया काजीगुंड ने हर घर दस्तक मुहिम का आगाज किया। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 100% रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने के अलावा तमाम गैर वैक्सीन शुदा केसों की कवरेज पर तवज्जो दी गई। तहसीलदार काजीगुंड शौकत हुसैन राथर ने कहा कि ICDS के साथ मिलकर एक मेगा वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया गया है।